નમસ્કાર, આજના બજારમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું પાર્થ મોદી. દર્શક મિત્રો, આજના બજારમાં ખાસ કરીને આજે વાત કરવી છે કે શું એ તેજી અટકી, કારણ કે પરિસ્થિતિ એ બની છે કે સેન્સેક્સ 694 પોઈન્ટ ઘટીને 81,300 પર બંધ થયો છે. નિફ્ટી પણ 214 પોઈન્ટ ઘટ્યો છે. નિફ્ટી પણ 25,000ની સપાટીની નીચે આવી ચૂક્યો છે. એટલે પરિસ્થિતિ શું દર્શાવી રહી છે કે જે તેજીની આશા અને અપેક્ષા આપણે રાખીને બેઠા હતા છેલ્લા 6 દિવસથી, તેજીનો એક આપણે એવી વાતો થતી હતી કે હવે આપણે 15 ઓગસ્ટ પછી પાછી એ તેજી તરફ આગળ વધીશું. પરંતુ આજના દિવસે જે ટ્રેડિંગની અંદર જે આજનો આખો દિવસ રહ્યો એણે ઘણા બધા પ્રશ્નો આપણી સામે ઊભા કરી દીધા છે. અને આજે વીકનો છેલ્લો ટ્રેડિંગ સેશન ડે, શું પરિસ્થિતિ આવનારા વીકમાં બનશે ને આજે કયા કારણોના કારણે આ પરિસ્થિતિ બની ચૂકી છે એના ઉપર નજર કરીશું. અને એ પહેલાં આપણે વાતચીત કરી લઈએ એશિયન બજારોની. એશિયન બજારોમાં જાપાનનો નિક્કી 0.054% વધીને 42,633 પર જોવા મળ્યો. કોસ્પી, કોરિયાનો કોસ્પી 0.86% વધીને 3,169 પર બંધ થયો. હોંગકોંગનો હેંગસેંગ ઇન્ડેક્સ જે 0.93% વધીને 25,339 ઉપર જોવા મળ્યો. ચીનનો શાંઘાઈ કોમ્પોઝિટ જે 1.45% વધીને 38,325 ઉપર બંધ થયો. હવે વાત કરી લઈશું ગ્લોબલ લેવલમાં સૌથી અસરકારક છે, આપણને ઇન્ડિયાને સૌથી વધુ ટચ કરી રહ્યું છે એવું ઇન્ડેક્સ કે જેની વાત કરીએ અમેરિકાની, તો અમેરિકાના ડાઉ જોન્સની વાત કરીએ તો 0.34% ઘટીને 44,786 પર બંધ થયો છે. આ સામે નાસ્ટેક કોમ્પોઝિટ તે સમયે 0.34% ઘટીને 21,100 પર બંધ થયો છે. S&P 500 0.40% ઘટીને 6,370 પર બંધ થયો છે. ખેર, અમેરિકામાં પણ દબાણ, અમેરિકન જે ઇન્ડેક્સ છે બજારો છે એની અંદર આપણને એક દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે. અને ખાસ કરીને પોવેલે જે એક રીતની વાતચીત કરી હતી કે ભાઈ હજુ મોંઘવારી, ટેરિફ અને રોજગારી આ એક સૌથી મહત્ત્વના મુદ્દાઓ છે. ફેડની મિટિંગની વાત હતી. શું એ ક્યાંક નેગેટિવ આપણને જોવા મળી રહી છે, એની અસરો પણ બજારની અંદર છે. DII અને FIIની જો વાત કરીએ તો ગતરોજ 21 ઓગસ્ટના રોજ વિદેશી રોકાણકારોએ રોકડ સેગમેન્ટની અંદર 1246.51 કરોડની ચોખ્ખી ખરીદી કરી હતી. આ સામે સ્થાનિક રોકાણકારો એટલે કે DII 2546.27 કરોડની ચોખ્ખી ખરીદી કરી હતી. ખેર, FDI આવી રહ્યું છે, FII હવે ધીમે ધીમે રોકાણ કરી રહ્યા છે. પરંતુ આ બધી વસ્તુ હોવા છતાં આ પરિસ્થિતિ ક્યાં વણસી એક સૌથી મોટો સવાલ છે. કારણ કે સેન્સેક્સે ગઈકાલે જ્યારે ક્લોઝ આપ્યો તો 42,000ની સપાટી ઉપર ક્લોઝ આપ્યો તો આપણને ક્યાંક એક અપેક્ષા હતી કે હવે 42,000નું લેવલ ક્રોસ કર્યું છે તો કદાચ એ ફરીથી એક મોમેન્ટમ ઉપરની સાઈડ આપે, એક તેજી આપણને તેજીનો ઉછાળો જોવા મળે, બાઉન્સ બેક થશે એવી આશા અને અપેક્ષા. પરંતુ આજે ક્યાંક વિપરીત માર્કેટ જોવા મળ્યું છે. આ સાથે જ આપણે વાત કરી લઈશું કે આજના નિફ્ટી, સેન્સેક્સ અને બેંક નિફ્ટીના લેવલ્સ કઈ કઈ જગ્યાએ છે. આપણા ટીવી સ્ક્રીન ઉપર આપ જોઈ શકો છો. નિફ્ટી 213 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 24,870 પર ક્લોઝ આપ્યો છે. આ સાથે જ સેન્સેક્સ જે 693.86ના ઘટાડા સાથે 81,306 પર બંધ થયો છે. બેંક નિફ્ટીની વાત કરીશું તો 606.5ના ઘટાડા સાથે 55,149 ઉપર બંધ થયો છે. હવે વાત કરી લઈશું ટોપ ગેનર્સ અને ટોપ લૂઝર્સ કે ટોપ ગેનર્સમાં કયા એવા સ્ટોક છે કે જેણે આજે આટલી બધી પરિસ્થિતિની વચ્ચે પણ સારો એવો કારોબાર કર્યો છે. નેટવેબ ટેકનોલોજી ઇન્ડિયા જે 257 રૂપિયાના ઉછાળા સાથે 2322 રૂપિયા ઉપર ક્લોઝ આપ્યો છે. ગોદાવરી પાવર 15 રૂપિયાના ઉછાળા સાથે 238.61 રૂપિયા ઉપર ક્લોઝ આપ્યો છે. પોલી મેડિક્યોર જે 106 રૂપિયાના ઉછાળા સાથે 2071 પર ક્લોઝ આપ્યો છે. જેન્ટેક જે 71 રૂપિયાના ઉછાળા સાથે 1493 રૂપિયા ઉપર ક્લોઝ આપ્યો છે. અતુલ 153 રૂપિયાના ઉછાળા સાથે 6,498 રૂપિયા ઉપર ક્લોઝ આપ્યો છે. આપણા ટીવી સ્ક્રીન ઉપર આ તમામ સ્ટોક. હવે વાત કરીશું ટોપ લૂઝર્સ કે ટોપ લૂઝર્સની શ્રેણીમાં આજે કયા 5 એવા ટોપ લૂઝર્સ છે. JK સિમેન્ટ આપણા ટીવી સ્ક્રીન ઉપર 293 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 6,841 રૂપિયા ઉપર ક્લોઝ આપ્યો છે. ઇન્ડિયા સિમેન્ટ જે 14 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 376.50 ઉપર ક્લોઝ આપ્યો છે. હુન્ડાઈ મોટર્સ 82 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 2366 રૂપિયા ઉપર ક્લોઝ આપ્યો છે. ગ્રાસિમ 73 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 2807 રૂપિયા ઉપર ક્લોઝ આપ્યો છે. એશિયન પેઇન્ટ્સ 61 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે
₹2505 ઉપર ક્લોઝ આપ્યો છે. ખેર, આ પરિસ્થિતિ છે ને આ પરિસ્થિતિની વચ્ચે હવે કઈ કઈ વસ્તુઓ બજારને અસર કરી રહી છે એના ઉપર આજે ચર્ચા પણ કરવી છે. અને જે મિશ્ર સંકેતો મળી રહ્યા છે, આ મિશ્ર સંકેતો આપણને કઈ દિશામાં માર્કેટને આવનારા દિવસમાં લઈ જશે, સાથે સાથે અમુક એવા પોઈન્ટ્સ છે કે જેના ઉપર નેશનલ લેવલે સતત ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે અને અમુક એવા પોઈન્ટ છે કે જેમાં ગ્લોબલ લેવલે ચર્ચા ચાલી રહી છે. તો એક તો જીએસટી પોઈન્ટ, જીએસટી રિફોર્મ કરવાની વાત છે. એમાં અગાઉ પણ આપણી ચર્ચા ચાલી હતી કે 2 સ્લેબ રહેશે એવી સૂત્રો તરફથી એવી અત્યારે તમામ જગ્યાએ વાતચીત ચાલી રહી છે કે 5% અને 18% આ 2 સ્લેબ આપણને આવનારા દિવસોમાં જોવા મળે. કારણ કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોદીએ જે સંકેતો સ્વાતંત્ર્ય દિવસે જે લાલ કિલ્લા ઉપરથી એમણે જે સંબોધન કર્યું હતું એની અંદર જે સંકેતો મળ્યા હતા એને લઈને તમામ લોકો, તમામ અર્થશાસ્ત્રના જે નિષ્ણાંતો છે એ તમામ આ અટકળો લગાવી રહ્યા છે કે જીએસટીની અંદર 2 સ્લેબ રહેશે, 5% અને 18%. તો જેનાથી મધ્યમ વર્ગને મોટો ફાયદો થશે. એન્ડ યુઝર્સ કે જે ખરેખરમાં પ્રોડક્ટ્સ યુઝ કરે છે એ પ્રોડક્ટ યુઝ કરવાવાળા વ્યક્તિને ફાયદો થશે. પરંતુ ક્યાંક ફાયદો થશે તો ક્યાંક નુકસાન થશે. તો આ નુકસાન કોને થશે એ એક સવાલ છે. બીજી વાત એ છે કે ઇન્સ્યોરન્સની અંદર જો 5% સ્લેબ થઈ જાય જીએસટી અથવા તો ઝીરો થવાની પણ શક્યતા છે. ઇન્સ્યોરન્સને મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ છે કે પછી વીમા કવર છે કે એ બધાને બહાર નીકાળી શકે એવી પણ વાતચીતો થઈ રહી છે. તો ક્યાંક ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઓનું માનવું એવું છે કે અમને આઈટીસી નહીં મળે તો અમે વધારે ઓછા દરમાં વીમા આપી નહીં શકીએ. તો એ પરિસ્થિતિનું છે. કારણ કે આઈટીસી મળવાથી એ લોકો જે મોટાભાગના જે ખર્ચાઓ છે આઈટીસીની અંદર બતાવી દે છે એટલે એમને મજરે મળી જાય છે. એના કારણે એ લોકો જે વીમા કવર લેતા હોય છે, જે ગ્રાહકો છે એમને ઓછા દરે મળી શકે છે વીમા પોલિસીસ. પરંતુ આ પરિસ્થિતિ છે એટલે હવે પરિસ્થિતિ કઈ દિશામાં આગળ જશે એની પણ એક ચર્ચા કરવી છે. જીએસટી એક મુદ્દો છે. બીજો મુદ્દો એ છે નેશનલ લેવલે જીએસટી છે. ગ્લોબલ લેવલે એક મુદ્દો એ ચાલી રહ્યો છે. ટેરિફ તો છે જ. ખેર, ટેરિફ તો એ કદાચ ટ્રમ્પ જ્યાં સુધી હજુ વાતચીત નહીં કરે કે ભાઈ હવે ટેરિફ જે હતું એ કરી નાખીએ છે ત્યાં સુધી આ ટેરિફનો મુદ્દો તો રહેશે. પરંતુ એની સાથે સાથે એવી માહિતી સૂત્રો તરફથી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે કે બ્રિક્સ નેશનની અંદર જે કન્ટ્રીઝ છે એ બધા હવે ઇન્ડિયન રૂપીઝની અંદર ટ્રેડ કરશે. એટલે જો ઇન્ડિયન રૂપીઝમાં ગ્લોબલ લેવલે ટ્રેડ ચાલુ થઈ જાય તો કેટલી મોટો ફાયદો ઇન્ડિયાને અને કેટલી મોટી અસર ઇન્ડિયાના અર્થતંત્રને. આના ઉપર ચર્ચા કરવી છે. ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે પ્રવીણ જાદવ સાહેબ, જેઓ ઇકોનોમિસ્ટ છે. પ્રવીણ સર, આપનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં. સાથે ડॉक्टर अनिल बोरकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इकोनॉमी ना असिस्टेंट प्रोफेसर. अनिल सर, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में. प्रवीण सर, आवाज आवे से? यस आवाज. ओके. प्रवीण जी क्या लग रहा है कि जीएसटी में 2 स्लैब की बात जो हो रही है उससे क्या आगे चल के क्या बेनिफिट होगा, क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप देख रहे हो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से और एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से भी क्या चीजें दोनों निकल के आ रही है? प्रवीण सर. यस, जैसे अभी आपने बताया कि जो जीएसटी स्लैब है वो 2 ही रहेंगे, 12 और 18%. जो पहले 5%, 12% और 28%. तो उससे सबसे जो ज्यादा फायदा होगा, जैसे जो हाई एंड प्रोडक्ट एसी और रेफ्रिजरेटर होगा तो उसका प्राइस जैसे 28% आया जाएगा तो उसका कंजम्पशन बढ़ेगा. जैसे ही कंजम्पशन प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, एक ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का वो अच्छा हो सकता है. तो सर सबसे जो पहला फायदा होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, ग्रोथ रेट. और जो स्लैब में था तो आसान हो जाए और छोटे व्यवसाय और प्रशासन लागत को कम और अंतर्राज्य छोटे व्यवसाय को भी छूट और कम लागत का लाभ होगा. तो ये सारे जो जीएसटी से हो सकते हैं. और ये जीएसटी का सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कब लागू होगा इसकी अभी भी सर. दिवाली में. प्रवीण सर थोड़ा गैजेट के पास आके बात कीजिए क्योंकि आपकी आवाज़ जो है ना वो कट हो रही है. जी सर, जी बताइए सर. मुझे आवाज़ की आ रहा है, वहाँ से भी आवाज़ आ रही है. ओके, आपको वापस आवाज़ आ रही है? यस.
ओके ओके, नो इश्यू सर, वो भी टेक्निकल इशू यहाँ पे टेक्निकल टीम सॉर्ट आउट कर रही है। सर दूसरी बात ये है कि आज मार्केट में जो अंडर प्रेशर हमें दिखा वो किस वजह से देखा, क्योंकि हम 15 अगस्त के बाद सोच रहे थे कि इंडियन मार्केट इज़ गोइंग टू बुलिश और अभी एक बुल रन चालू होने वाला है, तो ऐसा इंडिकेशन भी हमें मिल रहा था। गैप अप ओपन हुआ 15 अगस्त के बाद देखे तो, जब मंडे को मार्केट ओपन हुआ, एंड द लास्ट सेशन ऑफ टुडे मार्केट में एक प्रेशर दिख रहा है, ये चाहे वो निफ्टी में हो, सेंसेक्स में हो, बैंक निफ्टी में हो, तीनों में एक प्रेशर हमें दिख रहा है। सर इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? सबसे पहला जो जैक्सन होल समिट होना था, जो अमेरिकी फेडरल के भाषण का सभी इम्प्रेशन करने की वजह से इन्फ्लेशन सरकार है, सो जिसके वजह से बाजार थोड़ा डाउन किया है। दूसरा, अमेरिका ने जो 30% हमारा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, तो उसका सीधा असर पड़ेगा, और जो कि 50% होने वाला है, तो उसके वजह से ही काफी जो एडवर्स इम्पैक्ट हम इंडियन मार्केट में देख रहे हैं, उसलिए जो हमारे आईटी शेयर्स है वो डाउन हो रखे। राइट। तीसरा जो मेन रीजन था, क्योंकि 6 दिन से लगातार तेजी के बाद अभी निवेशकों का मुनाफा बुक करना शुरू हो गया, जेके सीमेंट और कार्य, तो उसमें लोगों ने अभी जैसे कुछ आईपीओ भी आए थे, तो लोगों ने जितने भी प्रॉफिट है वो मुनाफा बुक करके उन्होंने शेयर्स बेचना शुरू कर दिया, सो जिसकी वजह से बैंक और आईटी शेयर में काफी गिरावट आ गई है। और जो अनदर रीजन है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो लाइक वो आईटी सेक्टर में से एक भारी बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि उनको, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम आईटी सेक्टर पे काफी अमेरिका पे निर्भर है, और हमारे जो अभी एक ट्रेड टेंशन रिलेशन चल रहे हैं, उसके वजह से एक एडवर्स इम्पैक्ट हमारे आईटी सेक्टर पे आ सकता है। जैसे हमारे बहुत सारे सर्विसेज हम माइक्रोसॉफ्ट वगैरह दे रहे हैं, और इन केस ऐसा कोई पॉलिसी आ जाएगी जिसकी वजह से हमारे आईटी सेक्टर का जो डिमांड है कम हो जाएगा, तो उसके वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो काफी जो आईटी सेक्टर में बिकवाली कर रहे हैं। तीसरा है कि रुपए के जो डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, और इंडिया वीएक्सआई जो क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है, जिसके वजह से डर का माहौल है, और कच्चे तेल की कीमतों में हल्की बढ़त और वैश्विक ट्रेड टेंशन से माहौल नकारात्मक बना हुआ है। तो ये जो मेन रीजन है, उसकी वजह से जो आज का मार्केट है काफी डाउन रहा। ये मुझे जो मेन रीजन है ये लगता है। बिल्कुल। अनिल सर, आवाज आ रही है? अनिल सर, ઓકે અનિલ સર, શું લાગે છે કે જે રીતની આખી પરિસ્થિતિ અત્યારે વૈશ્વિક લેવલે બની રહી છે, એક બાજુ બ્રિક નેશનોની જો વાત કરવામાં આવે તો બ્રિક્સ નેશનની અંદર ઇન્ડિયન કરન્સીની અંદર જ્યારે ટ્રેડ થશે તો એની કેટલી વૈશ્વિક લેવલે ઇન્ડિયાને કેટલો ફાયદો થશે અને ઇન્ડિયાના અર્થતંત્રને કેટલો આનાથી ફાયદો થશે? Certainly, I think but since last 2-3 years, ब्रिक्स का एक तरफ ब्रिक्स का बढ़ता दबाव, लास्ट ईयर ही हमने स्टेटमेंट किया था कि ब्रिक्स और ब्रिक्स कंट्रीज जो ट्रेड होल्ड कर रहे हैं, उनका करेंसी का होल्ड करने का चल रहा है। सर आपका जो रिसीव, अनिल सर केएमसीडी डिमांड, अनिल सर, इसका डर तैयार हो रहा था मार्केट में फॉर द अमेरिका, क्योंकि उनको dimension भी है। Why does such kind of have to especially BRICS countries में, वो BRICS countries के अंडर आ रहे हैं, या इंडिया जो अलाइनमेंट जो रशिया ने, अमेरिका ने। अरे अनिल सर आपका जो हैंडसेट है ना, अनिल सर आपका जो हैंडसेट है ना, उसको पास में रखिए ताकि आपकी आवाज़ प्रॉपर आए। सर प्लीज़, वो जो आपने जो ईयरफोन है ना, उसका जो है ना रिसीवर, उसको पास में रखिए तो आपकी आवाज़ क्लियर आएगी। हमने लास्ट 2-3 ईयर से देखा है कि इंडियन इकोनॉमी का जो इकोनॉमी है वो कंसिस्टेंटली ग्रोइंग हो रहा है। Right. साथ में इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो भी कंट्रोल किया है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, और ये फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ट्रेड वो अच्छी तरह से इम्प्रूव हुआ है। अब अमेरिका से कंपेयर करके देखेंगे तो अमेरिका डेफिसिट विद ट्रेड डेफिसिट
huge trade deficit it is increasing. And why it is? Because in the same case is with European countries or the European Union also. क्यों हो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया आज के डेट में रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इवन इन यूरोपियन कंट्रीज को ऑयल ट्रेड कर रहा है. इंडिया इज इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया एंड एक्सपोर्टिंग टू दिस कंट्री. तो इसमें इंडिया का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू बढ़ रहा है. इसकी वजह से इट इज boosting the economic growth of India, and that's why the all the countries, those are like America, their supremacy, their trade holding जो कमांड है वो कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि वो इंडिया हो, रशिया हो, स्पेसिफिकली इंडिया एंड चाइना, इस तरह के कंट्रीज का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ये हमें पीछे छोड़ के आगे निकल जाए. इसलिए ये जो क्रोनोलॉजी है ये इसी में दिखाती है कि अमेरिका को इन सब चीजों से जी सर. तो इट्स अ क्रोनोलॉजी. प्रवीण सर क्या लग रहा है कि इट्स अ क्रोनोलॉजी कि भाई हम ट्रेड डेफिसिट और इंडिया जो आगे निकल रहा है तो उसको पीछे करने के लिए अमेरिका कुछ ना कुछ प्रयत्न कर रही है. प्रवीण सर आवाज आ रही है? देखिए जरूर अभी ओके. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी बात हो रही है, आप जो मुझे कह रहे हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं उनको, बट जो मैंने लास्ट टाइम में एक रीजन बताया था कि अमेरिका को हमारे मार्केट में एक्सेस चाहिए और पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उसके वजह से वो हमारे ऊपर दबाव लगा रहे हैं. इसके लिए जो भी हमारे बायलैटरल नेगोशिएशन चल रहे हैं वो ठीक से नहीं हो रहे. तो फर्स्ट रीजन जो है, हाँ, एक तो अमेरिका को उसके सुप्रीम कोई नहीं होना चाहिए, वो तो डर है ही, बट साथ में ही उनको अपने ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़ाना है. और उसके लिए वो जैसे अभी बताया कि हमारे ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका के साथ, तो उनको सरप्लस में कन्वर्ट करने के लिए उनको इंडिया में एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ाना है, क्योंकि इंडिया इज द बिगेस्ट लाइक वन ऑफ द इमर्जिंग एंड द बिगेस्ट मार्केट एंड वी हैव अ लॉट ऑफ कंज्यूमर बेस. तो उसको टैप करने के लिए अमेरिका हमेशा प्रयत्न कर रही है, और उसके लिए वो इनडायरेक्टली प्रेशर डाल रही है कि हमें जैसे आपके मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मिल्क, ये बेचना है. तो जब तक आप इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं कम करेंगे तो हम अपना लाइक जो आपके प्रोडक्ट हमारे कंट्री में आ रहे हैं उसके ऊपर हम प्रेशर बनाएंगे. दूसरा जो बात अभी आपने की कि ब्रिक्स इकोनॉमी का जो करेंसी का बात कर रहा है, तो सबसे उसका जो इम्पोर्टेंट फायदा ये हुआ कि जो मुझे लगता है कि डॉलर की जो निर्भरता में कम होगी, इसके वजह से रुपए में व्यापार होने से भारत का जब ये निर्भरता कम हो जाएगी तो वैश्विक मुद्रा में उतार चढ़ाव और पश्चिमी प्रतिबंध से हमें राहत मिलेगी. क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जब भी यूएस मार्केट में कुछ चेंजेस होता है उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में होता है. उसका मेन रीजन हमारे बहुत सारे जो ट्रेड हो रहा है वो डॉलर पेमेंट, उसमें टर्म्स लाइक दे आर आस्किंग डॉलर्स. तो अभी जब हमारे ब्रिक्स देशों में रुपए में व्यापार होगा तो ये निर्भरता कम होगी और रुपए में लेन देन से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटेगा और रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण बढ़ेगा. और यदि रुपया कमजोर हो जाए तो वो व्यापारिक साझेदारों को नुकसान उठाना पड़ सकता है. सो रुपया का लाइक अधिक प्रयोग भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाएगा, लेकिन अत्यधिक डीडॉलराइजेशन से निवेश और तकनीकी के लिए पश्चिमी देशों तक पहुंच में चुनौती आ सकती है. तो जब मुझे लगता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट ब्रिक्स करेंसी इंडियन करेंसी में ट्रेड करेगा तो हमारा जो ये मार्केट डायनेमिक्स थोड़ा सा चेंज हो सकता है और हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड में हमें लॉस होता है तो वो कुछ देर हद तक कम हो सकता है. बिल्कुल, मतलब वो कंपनसेट हो सकता है. पर सर जैसे कि बात करें कि डी डॉलराइजेशन की बात है, ट्रम्प को एक चिंता सबसे बड़ी है कि डॉलर की जो वैल्यू है वो डाउन करने की बात है, क्योंकि ब्रिक्स नेशन मिले है तो शायद यही एक चिंता सबसे बड़ी खाई जा रही है ट्रम्प को जो बात करें तो. डी डॉलराइजेशन, इंडियन रुपीज़ गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग और सब जगह पे ट्रेड होगा. यूपीआई तो चालू हो चुका है सब जगह पे. पर सर आज की बात करें तो सर मेटल, एफएमसीजी, ऑयल, गैस उस सब में बेचवाली हमें बिकवाली दिख रही है आज. आईटी, रियल्टी, एनर्जी में भी एक प्रेशर हमें दिखा. फार्मा इंडेक्स
थोड़ा बढ़ा हुआ दिखा, मिड कैप स्मॉल कैप्स थोड़ा फ्लैट, हमें फ्लैट रेंज में दिखा। तो क्या सर, क्या लग रहा है इससे, क्या हम कौन से सेक्टर में अभी निवेशकारों को अगर बात करनी हो तो कौन से सेक्टर में आगे सोचना चाहिए, वॉच रखनी चाहिए? प्रवीण सर, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि उभरते जो सेक्टर है उसमें ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर, रक्षा, क्योंकि हम आत्मनिर्भरता पे जोर दे रहे हैं, और फार्मा, जैसे इस इन तीन सेक्टर मुझे लगता है कि इट विल बी उभरते सेक्टर। जैसे हम बोले कि इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स हो गया, सन फार्मास्यूटिकल हो गया, फिर तो अपोलो हॉस्पिटल्स, ये सारे जो शेयर्स कुछ हो सकता है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी आ सकती है, क्योंकि उसका मेन रीजन है जीएसटी स्लैब सरलीकरण से ओवरऑल जो प्राइजेस होगी वो कम हो सकती है, और जो ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर के केस में है। दूसरा, जैसे इंडियन गवर्नमेंट आत्मनिर्भरता पे जोर दे रही है, तो कंपनीज लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो रक्षा क्षेत्र में है, और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो और फार्मा में वी आर ऑलरेडी डोमिनेटिंग, तो ब्रिक्स वजह से इस निर्यात में बढ़ सकता है। तो फार्मा इंडस्ट्री में भी मुझे लगता है कि फार्मा इंडस्ट्री के स्टॉक्स बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि 27 अगस्त जो डेट है, जिसमें मे बी इन केस 50% टैरिफ बढ़ाता है, तो मुझे लगता है कि जो आईटी सेक्टर मैंने बताया कि जिसमें काफी गिरावट आ सकती है, तो स्टॉप लॉस का उपयोग और वॉल्यूम पर नजर रखते हुए मे बी 27 इज द मेन डे, और रणनीति है कि गिरावट पर खरीदी करें, मुझे जो लगता है, और राइट, 2-3 सेक्टर में विविधता लाई, नॉट ओनली वन सेक्टर, जैसे और अभी कुछ आईपीओ उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बाय ऑन डीप, और जहाँ जहाँ पे गिरावट और अच्छी वैल्यूएशन स्टॉक पे अगर आपको मौका मिले तो उस पर ख़रीदारी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इट्स अ टाइम फेज। क्योंकि देखिए, जैसे कि अभी मार्केट में एक हमें बाय रैली मिली, 6 दिन से हम लगातार ऊपर की तरफ जा रहे थे। हाँ, एक आध दिन हम नीचे भी आए, पर 600-700 पॉइंट इट्स नॉट अ बिग डील फॉर राइट नाउ इन इंडियन मार्केट। अनिल सर, क्या लग रहा है कि कौन से सेक्टर और है? और जीएसटी की बात करें अनिल सर, जिसमें जीएसटी में 2 स्लैब हो गए। एक बाजू इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि हमें भाई मुनाफा हमारा कम हो जाएगा, इंश्योरेंस का ये प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट सोच रही है कि जितने ज़्यादा मेडिकल इंश्योरेंस निकले, जितने ज़्यादा बीमा पॉलिसीज़ निकले, तो उतना अच्छा है मिडिल क्लास के लिए। तो क्या लग रहा है इसमें क्या होगा? एक्चुअली ये जो टैक्स जीएसटी रेट्स जो का चेंज करने का जो चल रहा है वो स्पेसिफिकली मेरिट गुड्स को लेकर चल रहा है। अब इसमें भी ये जो सारा हमने इस डिबेट में हमने डिस्कशन शुरू से जो डिस्कशन किया है उसमें एक लिंक है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू चेंज द जीएसटी रेट्स ऑफ द टैक्स रेट्स, क्योंकि अभी जो हम जो यूएस डॉलर ने जो इम्पोजिशन किया है 50% टैरिफ का, राइट, उसकी वजह से क्या होगा, डेफिनेटली इट विल बी डायरेक्ट इफेक्ट टू द इंडियन ट्रेड, एंड इंडियन ट्रेड डेफिसिट अगर चेंजेस हुआ या इसमें चेंजेस हुआ, देन डेफिनेटली it will affect to the Indian economic growth rate. So Indian economic growth rate without getting any kind of disturbances, how can we run our economy consistently? इसके ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रहा है, इसके ऊपर गवर्नमेंट अभी ध्यान दे रहा है। So government is trying to decrease the GST rates on merit goods. अब मेरिट गुड्स में क्या क्या आ सकता है, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिकल, जो कॉमन मीडियम इनकम लेवल लोग जो ज्यादा वी कैन से वो जो मेरिट गुड्स के ऊपर जीएसटी कम करना चाहता है। इफ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेट reduces the tax rates on specifically GST rates on merit goods, then definitely it will boost the ultimately Indian economic growth rate, so that what will be the effects are there from the America's 50% tariffs, it will be overcome to this type of GST tax ओके, reduction, डेफिनेटली। tax rate reduction. ओके प्रवीण सर, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम बाउंड्री हमें बीच में आ रही है। प्रवीण सर, आपने जैसे कि बोला जैक्सन हॉल में जो फेड की जो एक मीटिंग थी, और उसमें चेयरमैन जी का एक बहुत 2-3 पॉइंट्स उनके थे कि भाई एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है,
और एक टैरिफ, ये 3 चीज़ फेड के चेयरमैन ने बताई है कि इन चीज़ों की वजह से कंसर्न है और आगे चल के ब्याज के दरों में कोई कटौती हम नहीं देख रहे हैं अभी के समय में। तो क्या लग रहा है सर कि इसमें क्या आगे जाके क्या निकल सकता है? प्रवीण जी। जैसे आपने बताया अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, तो इसका सीधा मीनिंग ये हो गया कि जो कंजम्पशन डिमांड है वो कम हो जाएगा। तो जब भी कोई बेरोजगार होता है तो वो डिमांड कम करेगा, तो ओवरऑल जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव वो कम रहेंगे। और जो हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कम होगा, वो नहीं हो रहा है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट आई थिंक स्टॉक्स मार्केट पे हो सकता है। तो मे बी इन्वेस्टर शुड बी कॉशियस इफ दिस इज द न्यूज इनटू द मार्केट। और क्योंकि देखो अभी मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच वी आर डूइंग हैव अ ग्लोबल लिंक, तो किसी भी एक देश में गिरावट आती है तो उसका सीधा असर हमारे इकोनॉमी पे हो सकता है, क्योंकि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल बिजनेस से काफी इंटरलिंक्ड हो चुके हैं। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है इन नेक्स्ट सम ऑफ द वीक्स। ओके, डेफिनेटली। तो सम ऑफ द वीक्स एंड फ्यू मंथ्स यू कैन बी अ वेरी कॉशियस, क्योंकि अगर निवेश करना है आपको तो एक प्रॉपर एक कॉशियस और एक वॉच आपको रखनी पड़ेगी सब सेक्टर में, और उसके साथ साथ जो ग्लोबल सेंटिमेंट हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं उस पर भी एक आपकी नज़र रखनी पड़ेगी। प्रवीण जी आप हमारे साथ जुड़े, अनिल सर आप भी हमारे साथ जुड़े, दर्शक मित्रों को माहिती और मार्गदर्शन दिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ अस बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर, प्रवीण सर, अनिल सर, थैंक यू वेरी मच। દર્શક મિત્રો, આજે માર્કેટને વિશ્લેષણ કરવાની એક કોશિશ કરી અને માર્કેટમાં આજે જે છેલ્લા 5 દિવસથી આપણે એક રેલી જોઈ રહ્યા હતા, આજે છેલ્લો ટ્રેડિંગ સેશન ડે અને એમાં ક્યાંક આપણને એક પ્રેશર જોવા મળ્યું છે। એક સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, જે રીતે સરે પણ વાતચીત કરી કે પ્રોફિટ બુકિંગ આપણને જોવા મળતું હોય, ઘણા કહેવાય ને કે ઘણા શોર્ટ્સ છે કે પછી કોલ્સ છે વાઇન્ડ અપ થતા હોય, ઘણી પોઝિશનો ક્લોઝ થતી હોય, એટલે એ એક સ્વાભાવિક રીતે એ વસ્તુ આપણને જોવા મળતી હોય છે। પરંતુ અલ્ટિમેટલી બાય ઓન ધ ડીપ, જ્યારે એક સરસ મજાનો કડાકો આવે, સરસ મજાની એક જગ્યા બને, ત્યાં તમે એક સારા વેલ્યુએશન એડિશન સ્ટોક ઉપર ધ્યાન રાખીને તમે તમારા જે ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર છે એની સલાહ લઈને તમે એની અંદર નિવેશ કરી શકો છો, રોકાણ કરી શકો છો, જેથી કરીને તમે ઇન ફ્યુચર ROI સારો એવો જનરેટ કરી શકો। ખેર, આજે પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ સોમવારે માર્કેટ કઈ દિશામાં આગળ વધશે એ આપણે સોમવારે જોઈશું, કારણ કે અત્યારે તો માર્કેટ એક આપણને અંડર પ્રેશર જોવા મળી રહ્યું છે। ખેર, આજની ચર્ચામાં અત્યારે આજના બજારમાં અત્યારે બસ આટલું જ। સોમવારે ફરીથી મળીશું, અત્યારે મને રજા આપશો। નમસ્કાર।